Good morning, class 8. Today we are going to start chapter number 1, that is rational numbers. In the chapter number 1, we talk about rational numbers, and before rational numbers, see real numbers. Real number is a set of numbers of natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and irrational numbers. These natural numbers are denoted by n, and the group of natural numbers is 1, 2, 3, 4 up to infinity. Similarly, whole numbers are denoted by w, and this is written as, the set is written as 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. Okay. So now up to this is clear. One more thing here, look here. From this to this, 1, 2, 4, 3, 4, 5 up to infinity, and these are both equal. So what we can write further, that whole number is a combination of 0, this 0 is alone, so 0, and these numbers are natural numbers. So combination of 0 and natural number are called whole numbers. Now integers. The set of integer is minus of infinity, then minus of 3, minus of 2, minus of 1. This will go up to minus of infinity. Then 0, 1, 2, again this will go up to infinity. Okay. So what do you see here? This 0 to infinity is what? This is w. This is what? This is w. Okay. Look here. Minus of 2, minus of 1, minus of 2, minus of 3, minus of infinity. Up to this, you see, this is negative of natural number. If I put 1, changed 1 to minus 1, 2 to minus 2, 3 to minus 3, what we are doing? We are multiplying minus 1 in the whole series. So minus of n, minus of n. So this minus of n, negative of natural numbers, and for this w, whole numbers, combination of these both two is written as integers. How can we write? Like this. Okay. Next we get rational numbers. This is the part we have to study in your chapter. So rational number are denoted by q, and this is equals to p by q, and q is not equals to 0. Also p and q are integers. What are they? Integers. Okay, remember this condition. Okay, always remember these two conditions. Any value of I can be written in the place of p and q, and q will always be not equals to 0. It will never be equals to 0. So all numbers which can be written in the form of p by q are rational numbers, and this, the last irrational number, is not in your course for now. We were studying about rational numbers, chapter number 1 of class 8. So what are the all numbers which are included in rational numbers? So all fractions are included in rational numbers. जैसे जिसका फॉर्म कैसा हो, p by q, सभी फ्रैक्शंस, ऑल द फ्रैक्शंस आर ऑफ द फॉर्म p by q, चाहे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन हो. ठीक है, तो वो सारे नंबर्स क्या हैं? फ्रैक्शंस हैं. और अगर फ्रैक्शंस हैं तो डेसिमल्स, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है? डेसिमल में आती है.
तो डेसिमल्स भी क्या होंगे आपके, रैशनल नंबर होंगे। एक केस तो ये हो गया, और दूसरा केस ये है कि जितने भी आई, डब्ल्यू और एन मतलब इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स हैं, वो सारे इंक्लूडेड हैं रैशनल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स। सपोज एग्जांपल मैंने लिया, एक इंटीजर है आई जिसकी वैल्यू कितनी है, -2। इफ दिस इज -2 देन इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -2/1। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूं तो क्या कोई आंसर में फर्क पड़ेगा, -2 की वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसी तरह से 0 आपका होल नंबर होता है, होल नंबर के नीचे मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय 1। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0 ओनली, -2 डिवाइडेड बाय 1 इज -2 ओनली। दिस अगेन सिमिलरली, कोई नेचुरल नंबर ले लिया अपन ने 105, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, 105 ही आएगा। इसका मतलब सभी इंटीजर्स, सभी होल नंबर्स और सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आपके p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं। p -2 q1, p0 q1, p105 q1, इस तरह से आपने इस फॉर्म में लिख दिया। और इस फॉर्म में अगर आपने लिख दिया इसका मतलब क्या, वो रैशनल नंबर्स होंगे। सो एवरी इंटीजर, एवरी होल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एक मैंने ये चार्ट बनाया है, इसको आप समझ लो तो उसके आपके पता चल जाएगा कि कौन सा रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है, होल नंबर्स के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर्स में क्या आता है और रियल नंबर्स में क्या आता है, वो देखिए। तो नेचुरल नंबर्स का जो सर्कल है वो सबसे छोटा बनाया है, तो इसकी जो सेट है, इसकी जो नंबर क्वांटिटी है वो सबसे छोटी है, उससे बड़ा और उसको इंक्लूड करता है। W में क्या आता है, 0 और n, 0 और n को मिला के, 0 और नेचुरल नंबर को मिला के क्या बनता है, W बनता है। इसलिए W के अंदर n भी आ गया, n का सर्कल W के अंदर आया। उसी तरह से इंटीजर और z, क्या क्या है इंटीजर में, माइनस ऑफ नेचुरल नंबर्स का माइनस और W दोनों को इंक्लूड जब करते हैं तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों को मिला के क्या बना, इंटीजर्स बना। अब Q मतलब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आ रहा है, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो P बाय Q फॉर्म में आप तीनों को लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये Q के अंदर इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स तीनों इंक्लूडेड है। उसी तरह से रियल नंबर्स, दिस आर डिनोट इज रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर Q मतलब रैशनल, इंटीजर, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स चारों के चारों प्लस इररेशनल नंबर सभी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये पूरा पार्ट।